Good morning, dear friends. Once again, we will start with the topic wave optics. Now, in the last lecture, we have studied up to the construction of spherical wavefront and the construction of plane wavefront by using the Huygens principle. So, and then we went for reflection and the refraction of plane wavefront using Huygens principle. So those derivations we have completed, and we started with the superposition principle. So in the superposition principle, I have told you when two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement independent of the other. The resultant displacement is the vector sum. That all we have did that. Now that vector sum, how it is possible? Today we are going to put a light on that. How that vector sum is done actually, and what is the use of that in order to get the different properties, like for example interference of light. That is afterwards. But before that, we will have the superposition of two waves. That is the superposition principle. Okay. So we will go for explaining the superposition principle. I will not write once again. Just I will write it, superposition principle. Now in superposition principle, I will take say graphical representation. First, graphically how we can show that. Graphical representation. So already yesterday, last lecture, I have told you, if the two crests of say equal amplitude are coming at same point, then of course they will produce a big crest. On the other hand, if the two trucks are coming at a point, then they will produce a big truck. And if one crest and one truck is there, then it will produce no effect. Okay, so no amplitude will be zero at that point. So it means that in the vector addition, we are somewhere dealing with the amplitude as a vector quantity. Means not like that, only plus minus signs and that all. So just like we are doing our vector addition and vector subtraction, the same we will do here. So whenever we will consider the wave, we have to consider in the form of wave equation. We have to consider in the form of wave equation. So before that, we will first graphically represent. How we can represent graphically the waves, we will try to do that first. So first of all, let me take the example of one wave, and यहाँ पे मैं प्लस डालता हूँ, यहाँ पे एक वेव निकालता हूँ. थोड़ा छोटा करते हैं ना बेटा, बिकॉज आपको वो तीनों चीज दिखना चाहिए. So in order to do that carefully, wait for a while, we'll do that. तो ये बन गया आपका पहला वेव, प्लस ये दूसरा वेव इज इक्वल टू उसका आंसर. आंसर कैसे आएगा? So I will divide this into the intervals. So if I will divide this into the intervals, then I will make 4 intervals. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4. यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4. So
if I will come up with two waves, suppose one wave has amplitude say A1 which is moving, one wave which has amplitude A1 which is moving in the medium. So I will consider this to be my A1. Now if that wave is coming with another wave which is having amplitude say A2, now I will notice that both are having same wavelength but different amplitude. वेवलेंथ तो सेम है उनका और एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट आई विल टेल यू. तो यहाँ पे बन जाएगा, इसको मैं बड़ा बनाता हूँ थोड़ा सा. तो यहाँ पे बन जाएगा अपना ये जो है ये वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विल इंक्रीज regardless of everything, remaining all things will be same and the amplitude of the wave will increase. So if I have to increase the amplitude, so this resultant amplitude will be A1 plus A2, but the vector addition में क्या है, अप और डाउन अब अपन को मालूम है, लेकिन वो वैसे लेना पड़ता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो A1 प्लस A2 अगर यहाँ पे लिया तो ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड है हर एक पॉइंट को ये एक दूसरे में ऐड करते जाएगा एंड रिजल्टेंट आई विल गेट वन वेव ऑफ मोर एम्पलीट्यूड देन. सो इन दिस केस resultant amplitude will be greater than A1, okay, magnitude, and resultant amplitude magnitude will also be greater than A2, as because they both are having same, means crest is added with crest. यहाँ पर मैंने I have not taken similar amplitude, क्यों नहीं लिया है तो उसका भी अपन को देखना पड़ेगा. I have not taken similar. So if it is like that, then we will get big resultant amplitude. On the other hand, अगर मैं ले लूं दूसरा केस जहां पे मेरा एम्पलीट्यूड्स वैसे ही है, लेकिन वन इज लाइक दिस और अदर इज लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या बन गया, ये A1 बन गया, ये A2 बन गया, लेकिन जहाँ पे A1 मेरा देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्रेस्ट है और ये ट्रग है, तो आई कैन सिंपली नोट डाउन दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. ग्राफिकली कैसे दिखाना है ये आपको मैं ट्राई कर रहा हूँ दिखाने के लिए. सो इन दिस केस वी गेट A magnitude is less than both of A1 and also the magnitude of A is less than A2. Then how to interpret that? That is very important. So we will go for interpreting the result, how it is coming exactly when we are considering our superposition of two waves. Are you getting my point? Okay. So we'll go for that. So now we will consider two waves having same wavelength. So I will explain. So first I will take two waves. Consider two waves having
amplitudes A1 and A2, और इसको हम कैपिटल लिख सकते हैं A1 and A2. Okay. Arriving at a point. There are two waves. First is having amplitude A1, another is having amplitude A2. They are arriving at a point. So now what will happen? So before going for the mathematical interpretation, let me speak with you the waves on the water surface. तो आपको NCERT में भी वो दिया है, उसी को लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ. एक वाटर सरफेस का कंसिडर करो और उसमें आप एक पिन लगा के उस सरफेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, थोड़ा थोड़ा मोमेंट में, तो आपको ऐसे पता चलेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द सरफेस इज क्रिएटिंग द वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. हर एक डायरेक्शन में उसका वेव्स चलते जाएगा, एक सर्कल बनते जाएगा. जैसे सी में टाइड्स होते हैं, वैसे ही उस पॉइंट से हर जगह पे वो टाइड्स छोटा छोटा वेव्स निकलता जाएगा. बट अगेन you will have another point, and if you start with 2 points, then there will be more disturbance, or somewhere there will be more ups, and somewhere in some area there will be more downs. So this is actually the case of superposition. लेकिन ये ऐसा डायरेक्टली इसको इंटरप्रेट करना, that is very difficult. That is why we will be able to interpret that if we will come up with this type of formulations. So suppose I will start with my wave, which is, suppose say y1 is equal to a1 sin omega t plus alpha 1, एंड दूसरी को बोलते हैं y2 is equal to a2 sin omega t plus alpha 2. इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस आई एम कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर 2. तो भी क्या बन गया, यहाँ पे y1 एंड y2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स. एम्पलीट्यूड तो a1 a2 लिखा है, एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर phases, initial phases. Now for the resultant wave, therefore resultant displacement, how we can go with resultant displacement will be, कैसे आएगा बेटा, y is equal to y1 plus y2. So resultant displacement at that point can be considered as y is equal to y1 plus y2. तो यहाँ पे बेटा y is equal to y1 plus y2, इसमें क्या बन जाएगा, y1 will be a1 sin omega t plus alpha 1, y2 will be a2 sin omega t plus alpha 2. अगर उनको हम जोड़ ले तो अपना इक्वेशन बनता है. तो ये same thing I have already explained you in the topic wave motion. Also we have discussed in the topic of AC, alternate current, LCR वगैरह में. उससे पहले हमने ये सेम चीज किया था, आपके ऑसिलेशंस में भी किया था, तो वही सेम चीज अभी करने वाले. The same thing we will be repeating right now. So I hope you have understood that. I will suggest you to take a pen paper. Already you would have taken it. I hope you are with pen and paper and noting down everything. तो अभी हम मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करने में जुटते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये बन गया a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1, दूसरा बन गया a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2. तो रिजल्टेंट, therefore what I will get here is that I will get y is equal to a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 1 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस
अल्फा 2 बन गया। अभी कुछ नहीं है, आपको आपका साइन का रूल याद करना है, साइन ए प्लस माइनस बी। इसका रूल क्या है? इट इज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अभी क्या बन जाएगा वो देखते हैं। Therefore यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, a1 और यहाँ पे इसका पूरा लिख लेता हूँ, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा। ये बन गया पहले वाला, प्लस दूसरे का क्या बन जाएगा? a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आपने ये लिखा है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। कितना टाइम बचा है? टाइम को भी देखना पड़ता है। हो गया? अभी कुछ नहीं है, इसका एडजस्टमेंट अपन को करना पड़ेगा। नाउ वी विल गो फॉर एडजस्टिंग द थिंग्स। ये आपको सबको मालूम है, लेकिन फिर से एक बार मेरे साथ करो इसको। तो इसको पूरा लिख देता हूं। ओके, ये क्या बन जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी, जा रहा है आगे, जा रहा है, साइन अल्फा 2। तो अभी इसमें क्या बन जाएगा? देखो बेटा, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ये कॉमन है। यहां पे कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी कॉमन है। देन इफ आई टेक द थिंग्स कॉमन, देन व्हाट आई विल कम विथ? I will come with y is equal to a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 into sin omega t plus यहाँ पे क्या बन जाएगा? a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 into cos omega t. Now I started with the wave in the form of a sin omega t. अपन ने स्टार्ट कैसे किया? अपना वेव कैसे स्टार्ट किया? y is equal to a sin omega t के टर्म में हमने स्टार्ट किया। तो अभी अपन को जो मिलना चाहिए एग्जैक्टली जो, वो कुछ तो साइन के टर्म में मिलना चाहिए। अपन को क्या मिलना चाहिए? साइन के टर्म में मिलना चाहिए। तो फिर से अगर ये वाला और ये वाला, इफ आई गो विद दैट, देन साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी विच विल बिकम साइन ए प्लस बी। तो इसको और इसको, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको बोलता हूं साइन ओमेगा टी ये है, तो इसको बोलता हूं a cos डेल्टा। तो इसको बोलेंगे हम a cos डेल्टा और इसको बोलेंगे a sin डेल्टा। तो मैंने 11 में भी करके दिखा है, तो इसका उतना कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर से आपको बता देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, हाँ तो पहले उसका a cos डेल्टा a sin डेल्टा वगैरह उसका करना पड़ेगा, तो हम वो पहले कर लेते हैं। तो a cos डेल्टा कैसे बनेगा? a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। a sin डेल्टा कैसे बनेगा? a sin डेल्टा
a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 हो गया। इसके बाद में क्या बनेगा, ये यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर 1 अगर मैं लिखा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, क्यों करूंगा मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किया तो वो 1 हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो इक्वेशन नंबर 3 इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अगर हमने उसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो आई विल बी रिमेनिंग विथ a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका क्या आएगा a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आएगा, तो a स्क्वायर मुझे कितना मिलेगा, a स्क्वायर का पूरा मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ये बन जाएगा a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2, ये इसका स्क्वायर बन गया, प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 2 प्लस 2a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। एक्चुअली ये करने का जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए चीजें कैसे आती है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन। अभी a1 cos अल्फा 1 cos स्क्वायर अल्फा 1 एंड साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो ये दो है, ये 1 हो जाएगा, इसमें से a1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा। वैसे ही a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2, यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, a2 स्क्वायर आपका बाहर निकलेगा, और यहाँ पे इन दोनों में से 2a1 a2 कॉमन निकल के cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 sin अल्फा 1 sin अल्फा 2 ये अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैं अभी डायरेक्टली लिखता हूँ a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 1, तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब ये cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b, तो फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस माइनस b उल्टा आता है, प्लस का माइनस आता है, माइनस का प्लस आता है। अगर cos a प्लस माइनस b लेते हैं तो उधर माइनस आता है, और cos a माइनस b लेते हैं, माइनस b लेते तो उधर प्लस आता है, तो ये आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos a माइनस b। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड फिर से कितना बन गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एम्पलीट्यूड्स विल बी एडेड इन द वेक्टर एडिशन। तो a कितना बन जाएगा, रिजल्टेंट विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अल्फा 1 minus अल्फा 2। So beta, I hope you have understood that. So now after this we will go for understanding how the resultant wave will look like and what is the tan of the angle between them. So we will go for finding out tan. So before that I will suggest you to take the screenshot of this and afterwards to note it down. Okay, तो आपको मैं 2 मिनट देता हूँ स्क्रीनशॉट निकालने के लिए, निकाल लो। तो बेटा निकाल लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे जाते हैं। नाउ वी विल गो फॉर गेटिंग tan। तो यहाँ से tan कैसे मिलेगा वो देखते हैं अभी। तो tan मिलने के लिए कुछ नहीं करने का है, ज्यादा कुछ नहीं करने का है, नथिंग यू हैव टू डू स्पेशल। खाली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहां से ये इक्वेशन से आपको a sin डेल्टा अपॉन a cos डेल्टा, इफ आई विल कैलकुलेट देन इट विल बी
A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 upon A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. A तो A कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan. So tan डेल्टा कितना मिलेगा? A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 plus upon A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. तो ये बन गया एंगल बिटवीन देम, tan. तो ये डायरेक्शन दिखाएगा, ये मैग्नीट्यूड निकालेगा और ये डायरेक्शन दिखाएगा. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. तो अगर इसको लेते मैं आगे चला गया तो आगे क्या मिलेगा मुझे? तो आगे मुझे मिलेगा ये तो हो गया, ये पूरा किया. अभी जहां पे एक्चुअल अपना है वहां पे वो ये इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार बोलता हूं. फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू a cos डेल्टा sin ओमेगा t प्लस a sin डेल्टा cos ओमेगा t. इसको ही रिराइट करता हूं मैं, ऐसा चलता है a sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस a cos ओमेगा t sin डेल्टा. अगर मैंने ऐसे किया तो a कॉमन बन जाएगा, ये बन जाएगा sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा. तो ये मेरे को मिल जाएगा a sin a cos b प्लस cos a sin b sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, where my a will be the resultant amplitude. A will be the resultant amplitude. Omega t will be the angular frequency, omega t is the time, delta will be the resultant phase. तो यहां से मैंने जो आपको दिया a अगर आपको निकालना है, if you want to calculate a then this will be your a. On the other hand if you want to calculate delta तो इस इक्वेशन से आप उसका डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हो. तो हमने यहाँ पे देखा if two waves are traveling in the medium and if they are coming at single point, then यहाँ पे आपको उनका एडिशन करके, वेक्टर एडिशन करके each wave will produce its own displacement. तो देखो यहाँ पे A1 का भी है, A2 का भी है, लेकिन resultant displacement will be the vector sum of individual displacement produced by the two waves. Are you getting my point? तो यहाँ पे resultant displacement आपका कैसे मिल गया? It is the vector sum of the individual displacement. ये तो वेक्टर सम है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos डेल्टा. डेल्टा ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आपका जो कुछ है वो आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे डेल्टा मतलब एंगल मेड बाय सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो यहाँ पे वो दिखाने का जरूरत नहीं है, डेल्टा उसको हम फेज लिखते हैं. तो ये सब चीजें है बेटा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड मतलब कभी कभी हम डेल्टा को अभी फेज बोल रहे हैं, लेकिन वो फेज मतलब वेव के बारे में कैसे लिखेंगे, ये क्या होता है, कितने अंतर में रहेगा वो, व्हाट विल बी द आउटकम. सो दोस एवरी पॉइंट्स विल बी नाउ डन विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड रिलेशन. क्योंकि बेटा हम ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दैट, कि बाबा वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. तो ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हमने फाइंड किया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. तो वहां से आपको क्या मिलेगा, आपका जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो अगर आपको एम्पलीट्यूड मिल गया तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगा. और लाइट के बारे में, फॉर द लाइट आइदर वी विल हैव अ ब्राइट पॉइंट और वी विल हैव अ डार्क पॉइंट. तो वेदर एट अ पॉइंट इफ दे आर कमिंग टुगेदर, then I will be able to recognize whether my point is dark or my point is bright. तो वो निकालने के लिए हम कहीं पे भी तो उस रिलेशंस को इकट्ठा कर सकते हैं. Are you getting my point? Okay. तो यहाँ से हम कुछ जरूरी चीजें कर सकते हैं.
वो क्या है, तो इस रिलेशन को मैं फिर से लिख के लेता हूं और वो रिलेशन का यूज करके आफ्टरवर्ड्स वी विल बी एबल टू डू द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो यहां से हम आगे चलेंगे और आगे क्या करेंगे हम, वी विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट केस एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन डिफरेंट केसेस। ओके बेटा।